Hello, hi, namaste everyone. I am Monica. Welcome back to the channel that is Moni Super Classes. So please subscribe to the channel, like the video, do like our Facebook page. I'll put the link in the description box. I know it's been so long, but I am back. In this video, we are going to discuss about the COP26 global climate change summit, and we are only going to focus on the India's commitment, like India's perspective, what are the plans or commitment India put forward on this COP, yani conference of parties, this the fourth meeting of COP26 that was held Glasgow. And so I'll give all of the detail, and I'll do promise I'll keep this video short and simple. We are only going to discuss what is crisp and to the point whenever comes to this topic, since this topic belongs to the people and environment, which is quite important for the exam point of view, right? So let's just dive into the video. I hope screen is visible. There we go. So COP26, basically conference of party. It is a commitment and the meetings of basic 26 meetings. Okay, and this one, the fourth, the meeting just happened, or the summit just finished on 12th of November this month. This was a fourth one, right? So United Nation Climate Change Conference 2021, कॉमनली नोन एज COP26, COP26. तो टोटल 26 गैदरिंग है, और ये जो वाली हुई थी ये फोर्थ वन थी. ये जो मीटिंग थी बैक टू द लास्ट मंथ 31 अक्टूबर से 12th ऑफ नवंबर दिस मंथ कंक्लूडेड हुई थी, एंड इट वॉज होस्टेड in Scotland, United Kingdom, UK. So COP26, the meeting was held under the presidency of Alok Sharma. Let me tell you one thing, there was a lot of content that is not there on the slide. So if you guys listen what I'm saying quite carefully, right? So you guys are good to go. So if something is important, I do scribe or annotate on the video, on the screen, right? So this meeting was happened under the presidency of Alok Sharma, right? And as I told you, it is the third meeting, right, of the party. और क्यों ये हो रही है, like why this conference happening? So this conference happening are expected to commit and enhance the ambience. Okay, तो party are required to carry out some ratchet mechanism. What is ratchet mechanism? So ratchet mechanism, let me just write it down on the screen. Ratchet mechanism. So party working to carry these ratchet mechanism. So basically they are the 5-year plan that all the party. There was a term called intended determined. So intended nationally determined contribution, INDC, not IN. So let me just switch the letter, INDC. So there was a term come under this, INDC, so intended nationally determined contributor. कुछ 5-year plans होते हैं. तो COP26 के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, दे आर पुट फॉरवर्ड सम प्लान्स, ठीक है, रिलेटेड टू नेशनल क्लाइमेट्स को लेकर कुछ प्लान्स 5 सालों के लिए हर एक कंट्री अपनी अपनी तरफ से कुछ टारगेट्स मीट करने के लिए मीटिंग्स में रखती है. तो ये जो मीट होती है, समिट है पेरिस, उन्हीं चीज़ों को लेके, और इसका क्यों ये मीटिंग है जो ये पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड है, बेसिकली ये स्टेबलाइज करना है हमको ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में. यहाँ पर सबके टारगेट्स और टारगेट्स होते हैं, इवन जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस के, वो भी चेक किए जाते हैं कंट्रीज में. तो यहाँ पर इन दिस वीडियो वी आर ओनली एंड ओनली गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द इंडियाज कमिटमेंट्स, और कितना हमने अचीव कर लिया. एंड आई ऑल्सो ट्राई कि जो लास्ट मंथ के जो प्लान्स थे, क्योंकि ये इस बिन 1 मंथ और सो कि कुछ न्यू प्लान्स, न्यू चेंजेस आ गए हैं, वो हमें डिस्कस करने पड़ रहे हैं. तो जो भी जस्ट इन अक्टूबर तक जो भी प्लान्स थे और अब जो चेंजेस हैं, इफ टाइम परमिट आई ऑल्सो डू द कंपेरिजन थिंग. Moving on to the another slide. Yes, so now discuss some of the goals. So what are the goals of this meetings? So the first one goals is really important when it's come to this net emission, like zero net emission करके. So on the first day of the global climate meet COP26, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो प्रपोज किए थे, there was a 5-fold strategies. तो 5-fold strategies के बारे में बातें पढ़ेंगे. ये कुछ प्लान्स हैं, सिंपल से गोल्स हैं, जो कि ग्लोबल नेट जीरो इमिशन मिड सेंचुरी तक हमें अचीव करना है, और हमें रखना है टारगेट की 1.5 डिग्री जो सेल्सियस है, इसके इन बिटवीन हम रीच हो जाए. हमें प्रोटेक्ट करना है कम्युनिटीज़ को, द नेशनल हैबिटेट को, मोबिलाइज करना है फाइनेंसेस को. अच्छा, मोबिलाइज करना है फाइनेंसेस को इन 2 टारगेट्स को मीट करने के लिए, राइट? तो येस, नाउ इट्स रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज. तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसकी मैंने बताया था कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस ग्लोबल क्लाइमेट मीट COP26, यहाँ पर जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने कुछ 5-fold स्ट्रैटेजीज प्रपोज की थी, राइट, नोन एज इंडियाज कमिटमेंट. अब इन 5-fold स्ट्रैटेजीज को ना मोदी एज पंच अमृता भी बोलते हैं. सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. तो यहाँ पर ये जो रोल प्ले करती है, जो सारी स्ट्रैटेजीज है ना, घूम फिर के अचीव हमें वही करना है. वी वांट टू गेट क्लोजर टू द वर्ल्ड इज 1.5 डिग्री सेल्सियस, राइट? एंड यस, जो कुछ 5-fold स्ट्रैटेजीज हैं, उनको मोदी एज पंच अमृता बोलते हैं.
तो हमको वो सारी कमिटमेंट्स याद करनी है, लाइक वी शुड नो क्या कमिटमेंट्स हैं और कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। तो अभी हम इन द नेक्स्ट 2 स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो इंडिया की कमिटमेंट्स हैं उनको मोदी पंचमृता बोलते हैं, एक बार ये ध्यान रखना, पंचमृता, राइट। Do you guys know what is Panchamrita? So Panchamrita is it's a Hindi term. Panchamrita is a method of mixing. Which Panchamrita is basically a 5 natural. When you mix the 5 natural food ingredients, what are the 5 natural food ingredients? Let's call milk, curd, ghee, honey, and jaggery. So something is made out of mixing of these ingredients, known as a Panchamrita. And Panchamrita in Hindutva used in Ayurveda. It's a technique used in Ayurveda, Hindu, and Jain worship rituals. Now moving on, very very important slides topic. My system is getting hang. I don't know why. Yes, important. India is Panchamrita or India is commitment. Both are the same thing. Moving on to the first commitment, and I also do the comparison, as compared to the last month और अभी क्या changes हुए हैं. तो first है कि taking as India's non fossil fuels energy capacity up to the 500 gigawatt by 2030. Do you guys know ये है changes अभी now. Non fossil renewable energy होती है. Renewable energy includes our solar power, hydro power. These are the things, right? रिप्लेनिश जल्दी हो जाती हैं, रिप्रोड्यूसेबल हो जाती हैं, इको फ्रेंडली, और कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं होती, ग्रीन हाउस गैसेस को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज, अगर हम इनको टारगेट करें, इन एनर्जीज को टारगेट करें, रिसोर्सेज को, सोलर एनर्जीज रिसोर्सेज को टारगेट करें। नाउ द फर्स्ट जो इंडिया का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है, दैट इज अ 500 गीगावाट 2030 तक। अच्छा, ये है न्यू प्लान। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लास्ट मंथ तक जो भी प्लान थे, तो लास्ट मंथ तक ये जो टारगेट था ना, दैट वाज अ 450 गीगावाट, ओके, और वो भी 450 ना 2022 तक था, राइट। अभी रिसेंट जो चेंजेस आए हैं, इन्होंने 2030 बढ़ा दिया है, यानी कुछ 7 मंथ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, टाइम टारगेट 7 मंथ एक्सटेंड कर दिया, और जो टारगेट है वो भी इंक्रीज कर दिया, दैट इज 50 और इंक्रीज कर दिया गीगावाट, राइट। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड कमिटमेंट, फुलफिलिंग द 50% ऑफ इंडियाज कैपेसिटी एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। सो 50% इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, तो 2030 तक 50% हमको इंडिया की लाइक जो रिक्वायरमेंट है वो 50% है। लास्ट टाइम दैट वाज लास्ट टाइम, इफ आई एम सेइंग लास्ट टाइम, अभी रिसेंट जो 1 मंथ बैक जो टारगेट थे, उनके अकॉर्डिंग ये जो टारगेट था इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट का, कुछ 33 पॉइंट समथिंग था, 33.35 whatever, बट अभी ये 50% चेंज हो गया, राइट। मूविंग ऑन थर्ड कमिटमेंट, दैट इज अ ब्रिंगिंग डाउन द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी बाय मोर देन 45%। तो 45% 2030, इनिशियली दैट वाज 40% था कि जो कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है अप टू 40%। लास्ट मंथ अभी जो चेंजेस हुए हैं वो 45 हो गए, और ये 45 चेंजेस है जो हमें टारगेट अचीव करना है, ये 2030 तक करना है, ठीक है। क्या करना है, कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है, जो अभी 45% तक कम करना है, 2030 टारगेट हमने लिया है ईयर का, इनिशियली 40% था ये। कमिटमेंट 4 और मोदी पंचमृता का जो टारगेट है, जो कमिटमेंट है 4 ये है, कट डाउन द नेट प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ अंटिल 2030। अभी से लेकर 2030 तक जो भी हमारी कार्बन इमिशन, जो भी हमारा कार्बन इमिशंस यूज कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज को, उसको कट डाउन करना है, मतलब जो भी नेट प्रोजेक्टेड है उसको 1 बिलियन तक डाउन करके चलना है, रिड्यूस करना है 2030 तक। एंड लास्ट वन कमिटमेंट जो है, अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070। देखो, जो लाइमलाइट गोल था ना इस पूरे समिट का, वो नेट इमिशन कार्बन इमिशन का था, कि जो हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन बेसिकली इस टारगेट को अचीव करना था। अभी यहाँ पर इंडिया ने थोड़ी सी मार खा ली, क्योंकि जो बाकी कंट्री है ना, उनका जो नेट जीरो कार्बन इमिशन है, दैट वाज 2050, ठीक है, 2050 तक था, और टारगेट भी था कि 2050 तक हमको नेट जीरो इमिशन टारगेट को अचीव करना है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने बहुत पीछे चले गए, लाइक इन्होंने 20 ईयर्स और ऐड कर लिए, अब ये 2070 बन गया, जो हमारा नेट ये टारगेट, इसी को लेके कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, लाइक इसी को लेके बट वी कॉल के जो यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है कि ये हमें इस टारगेट तक करना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पीछे हो गया बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग। उनका टारगेट कुछ 2050 तक था, अभी लास्ट टाइम भी 2050 था, लेकिन यहाँ पर 20 साल और इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो इंडिया की तरफ से जो हम नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव कर पाएंगे 2070 तक, येस, दैट इज़ द थिंग, और क्रिस्प थिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन you guys should know when come to this topic, COP26 जो चेंजेस हुए हैं, और इस वीडियो के अंदर हमने कंपैरिजन भी कर दिया, जो कि लास्ट मंथ जो चेंजेस थे, और 1 मंथ के अंदर जो चेंजेस हुए हैं। ये मीटिंग नवंबर 12 को फिनिश कंक्लूड हो गई है। ये सब चेंजेस है जो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। सो या विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, you give that much time, and I leave you nothing but with my best wishes, and yes, I see you in my next one. If you guys have any question, you can put in the comment section, guys. Thank you so much, and please like the video. Yes, I'll see you in my next one. Thank you, bye for now, and have a nice day ahead.